ओके, लेट अस स्टार्ट। तो उसमें हमने देखा ये जो पैरामीट्रिक कर्व्स है जिनको हमने कहा पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। पहले तो ये है कि वी अगेन राइट डाउन द इक्वेशन इक्वल्स r at, वहां पे हमने पैरामीटर दिया था phi, so let me call it u phi is equal to, हमने लिया था u cos of phi, u sin of phi, and then is our profile curve f of u. So that was our surface of revolution. लेकिन इसको हम चूंकि usually नाम देते हैं parameters का uv, we can also write it as u cos v, u sin v, and f of v, f of u. Sorry. So that would be our surface of revolution. अब इसकी parametric curves जो हैं, they're always, जो parametric curves mean is u is equal to constant. अगर हम u को constant रखेंगे and phi को run करेंगे over a surface of revolution which could be a surface of this type, ऐसे ही मैं roughly इसको बना रहा हूँ. So इसकी जो v जब run करेगा, of course v runs between 0 and 2 pi, so we get these slices which are sort of circles of different radii at each point on the surface. So this is one set of parametric curves, and when I let u run and keep v fixed, अगर मैं v fix करूँगा, I will get a curve of this type, मतलब जो मैं इसके corresponding meridian इस type की जो मैंने ठीक से नहीं बनाया, तो so now it's easy to check कि they are lines of curvature. तो इसके जो parametric curves होते हैं वो automatically होते हैं lines of curvature. Now वो मैं तुम्हें एक homicide में दे सकता हूँ. The parametric curves on a surface of revolution are lines of curvature. उसके लिए हमने एक थ्योरम किया था कि parametric curves lines of curvature होते हैं if and only if f is equal to 0 and m is equal to 0. तो एक्चुअली हमने दिखा दिया अगर इसके लिए f और m 0 है तो प्रूव हो जाएगा इसकी जो parametric curves है वो actually lines of curvature of the surface. So f तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, f is ru dot rv, m is n dot r sub uv, और n जो है that is r u cross rv divided by the norm. So basically you have to show that these are free. मतलब इसको partially differentiate करना है 2-3 बार और कुछ cross product और dot product evaluate करने हैं, and you will see that ये भी 0 होगा और ये भी 0, और अगर ये दोनों 0 होंगे that means the parametric curves are lines of curvature. ठीक है, so ये तुम पे मैं छोड़ता हूँ, मतलब कुछ ज्यादा करना नहीं, you have to evaluate f and m only. ठीक, okay. Now we want to find its principal curvatures. We want to find the curvatures of least and highest normal curvature, curves on the surface or normal sections on the surface, जिनका maximum or minimum curvature होता है at that point. तो वो curvature हम ढूंढना चाहेंगे, यानी हम उसकी वो differential equation जो है curvatures की quadratic equation हमें मिलती है जब हम वो principal curvatures निकालते हैं, वो basically है h square k sub n square minus en plus gl minus twice fn times kn plus t square is equal to 0. And we want to find this for, we want to substitute the values of h, k, n, e, n, g, l, fm when the surface is a surface of revolution.
ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल कर्वेचर्स of the surface curvature. Okay. So प्रिंसिपल कर्वेचर्स यानी हमें बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं, फिर इसमें सबस्टिट्यूट करना है एंड देन वी वुड फाइंड द we solve it for kn and we will get the principal curvatures. यानी इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं when we solve for this kn we get the principal curvatures. Okay. Now any point सीधे लिखते हैं the equation of the surface of revolution जो हमने अभी किया था revolution is R is equal to R at UP, which is given by U cos V, U sin V, and of course I have got f of U, which is a curve, a differentiable function, of course. So, okay. Now to evaluate EGFLN, I have to find RU, RV, वगैरह वगैरह. So R sub U किसके बराबर होगा? You partially differentiate with respect to U. So that would be cos of V, sin of V, and f dash at U. Because this is just a function of U only. So therefore, when I differentiate it partially, it is equal to the derivative. Because there is no other dependence on, and the V is not there. So इसको मैं लिखूंगा इस तरह से, just to मेरी calculation को संभालने के लिए, cos V, sin V, f1. By f1 I mean df by du is my f1. Similarly, I will write जब मैं इसको दो बार differentiate करूंगा, उसको मैं लिखूंगा f, or should I write it f11. फर्स्ट वेरिएबल के साथ हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट यू कैन आल्सो राइट f डैश, या इसको आप चाहो तो f डैश लिख लो या f डबल डैश लिख लो, लेकिन दिस इज बेटर क्योंकि ये थोड़ा मतलब इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना. Now what would be RV? RV would be partially differentiate this with respect to P, so it would be minus U sin V, U cos V, and of course 0 because this only depends upon U. So इसके बाद तुम देख सकते हो, अगर मैं E ढूंढना चाहूँ, E is just RU dot RU, so वो बराबर होगा, इसके बराबर होगा, it is actually nothing but the length of RU square, which is equal to cos square of V plus sin square of V plus f1 square, that's equal to 1 plus f1 square. इसी तरह से अगर तुम f ढूंढना चाहोगे, चूंकि मैंने कहा था 0 होगा, you can यहाँ check भी कर सकते हो, actually f is always 0. So this is actually RU dot RV होगा minus U cos V sin V plus U cos V sin V plus 0. That's equal to 0. इसी तरह से तुम G अगर निकालना चाहोगे, that is RV dot RV, that's equal to RV, so that is just U square. ठीक है, because it would be this square plus this square plus 0, so that's just U square. इसी तरह से L के लिए हमें इसको दूसरी बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी तुम्हें ढूंढना पड़ेगा RU is equal to RU would be 0, it should be f11, यानी सेकंड डेरिवेटिव. इसी तरह से RUV बराबर होगा, इसके बराबर और जिसको V के साथ डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन V cos V, I think 0. इसी तरह से तुम RVV भी कर सकते हो, दैट इज इसको V के साथ डिफरेंशिएट करो, सो वो बन जाएगा माइनस U cos V माइनस U sin V 0. ठीक है,
We also need to find the n, यानी उसके लिए मुझे चाहिए ru cross rv. ru cross rv इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. कैन आई लीव इट टू यू, ये जो ईजीएफ इवैल्यूएट करना है? जी सर, जी सर. ये तुम कर सकते हो. तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा कि ई जो है वो है 1 प्लस f1 स्क्वायर, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा खामखा. f इज इक्वल टू 0 जो मैं कर चुका हूँ. g इज इक्वल टू यू स्क्वायर. तो l तुम्हें मिलेगा uf11 बाई h. m ऑफ कोर्स 0 मिलेगा जो कि मैंने पहले ही कहा था. एंड h स्क्वायर जो है वो होगा ऑफ कोर्स u स्क्वायर इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर. और t स्क्वायर जो है जो कि है ln माइनस m स्क्वायर, वो तो सिंपली ln होगा. So that would be u cube f11 divided by h square. So that would be our t square. Okay. Now इसमें हमें इसको हमें substitute करना है. Now the equation of the principal curvatures is h square k sub n square minus en plus gl minus 2fm times kn plus t square is equal to 0. So which becomes, after this substitution, of course, h square को ऐसे ही रखते हैं, h square को वैल्यू भी देते हैं. h square को देते हैं वैल्यू. So this would be u square into 1 plus f1 square kn square. इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टीडियस है. माइनस en plus gl. n मैंने लिखा कहीं पे? n मैंने लिखा नहीं. n is actually equal to u square f1 जो ना तुम इवैल्यूएट करोगे divided by h. तो en plus gl ही आएगा क्योंकि fm तो 0 है. तो en होगा, e है 1 plus f1 square, n है अपना u square into f1 divided by h. Then I have gl. g is u square. l क्या है? l कहाँ गया? l is u. मैंने en लिखा था पहले. u square f1. So it is u f11 divided by h. And this whole multiplied by kn, of course. Then I have t square. t square तो मैंने लिख लिया यहाँ पे. Plus t square, that is u cube f11 divided by h square is equal to 0. अब क्या हम करेंगे? h square से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, right? So we'll get h square into u square into 1 plus f1 square kn square minus, अब यहाँ पे h आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में h है, तो it would be h into 1 plus f1 square into u square f1 plus u cube f11 whole multiplied by kn plus u cube f1 f11 is equal to 0. यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ रहा है. कम से कम u स्क्वायर तो मुझे हर जगह दिख रहा है. u स्क्वायर यहाँ भी u स्क्वायर कॉमन है और यहाँ भी है. तो u स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, दोनों साइड को u स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो you will get what? h square into 1 plus f1 square, right, into k sub n square minus h को ऐसे ही रखते हैं. अंदर बचेगा 1 plus f1 square f1, I think so, plus u into f11, right, kn plus u into f1 plus f11 is equal to 0. अब h को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे. h क्या है अपना? h is यहाँ h स्क्वायर है. इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो you will get, this would imply that
h स्क्वायर की जगह आएगा u स्क्वायर, फिर आएगा 1 plus f1 स्क्वायर, so it should be 1 plus fn स्क्वायर का whole square kn square minus it should be u into root of 1 plus f1 square, और अंदर रहेगा as it is 1 plus f1 square into f1 plus u f11 into kn plus u into f1 f11 is equal to 0. ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि दूसरे पेज पे इसको जाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, कैसे ही रखें सर आप ऊपर इरेज कर सकते हैं। हाँ आप सर ऊपर इरेज कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस पे नजर रहनी चाहिए, क्योंकि हमें इसके रूट्स निकालना है। ये थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये पेश, वैसे अच्छा है। सो ओके, इसके जो रूट्स हैं वो है प्रिंसिपल कर्वेचर्स, सो लेट मी कीप इट एज इट इज। हाँ एज इट इज, लेकिन u को हम हटा ही सकते हैं एक, है ना। वो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। देखो u स्क्वायर है, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो अगर मैं यहाँ डिलीट कर दूँ, यहाँ और यहाँ स्क्वायर को खत्म कर दूँ, यानी दिस इज व्हाट आई गेट, है ना। एक u तो खत्म हो ही सकता है। अब हम इसके प्रिंसिपल कर्वेचर्स निकाल सकते हैं। This being a quadratic in Kn, being a quadratic in case of n, gives two values of k. उसमें हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। Given by quadratic formula, that is Kn होगा, of course you would have b, है ना, minus b, so that b तो ये है अपना, this is our b, जैसे quadratic equation में होता है, this is our a and this is our c. So quadratic formula के हिसाब से it should be, पहले b आएगा, यानी root of 1 plus f1 square multiplied by u f11 पहले लिखता हूँ मैं, plus f1 into 1 plus f1 square, ये अपना b है। Then I have plus minus root of b square minus 4ac. So b square का मतलब हुआ इसका square, so that will be 1 plus f1 square into u f11 plus f1 into 1 plus f1 square the whole square minus 4 times ac, 4 times fu into 1 plus f1 square the whole square. Then I have f1 f11, ठीक है, ac, ठीक है, whole divided by of course 2e, 2 in u into 1 plus f1 square the whole square. So this is what I should get. So let me rub it further. इसको जरा रेज करते हैं यहाँ पे। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। So what we do, इसमें से एक चीज तो कॉमन निकलेगी ही, that is this root of 1 plus f1 square. So I can write it as root of 1 plus f1 square into u f11 plus f1 into 1 plus f1 square. Okay, then plus minus root of 1 plus f1 square को मैंने बाहर ही निकाला, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। So you should basically get inside u f11 plus f1 into 1 plus f1 square का whole square minus एक फैक्टर 1 plus f1 square का मैं बाहर निकाल चुका हूँ, it should be 4u into 1 plus f1 square into f1 whole divided by, as you can see, twice u into 1 plus f1 square का square. अब मैं इसको इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ, आधा पावर ऊपर है, नीचे 2 है, so I can just
delete this vector, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, let me write it down, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकता हूँ रेज पावर 3/2। नीचे ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, सो यू वुड गेट रेज पावर 3/2। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है स्क्वायर रूट के अंदर। सो अगर मैं ऐसे ही लिखूं uf11 प्लस f1 into 1 plus f1 square, ओके, प्लस माइनस, फिर स्क्वायर रूट के नीचे देखेंगे क्या होगा। बट आई थिंक कुछ तो मैचिंग हो रही है। यस, दिस इज एक्चुअली a प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ab ना, f1 स्क्वायर f1 ये इधर आ गया, और ऑफ कोर्स u f11 भी है, सो यू गॉट a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ab इज नथिंग बट a माइनस b का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर बनेगा तो फिर हमारा हट जाएगा ये सारा इजी, यानी ये बनना चाहिए, इट इज एक्चुअली द सेम थिंग एज uf11 minus f1 into 1 plus f1 square whole square, and of course this cancels out, divided by twice u times 1 plus f1 square whole raised power 3/2. So we're done, आधा हिस्सा हमारा हो गया। अब this is my kn, तो इसकी जो दो values हैं, they are the principal curvatures k sub a and k sub b. So if k and kb वही हम लिखेंगे, k sub a and k sub b are principal curvatures, then ka must be equal to, एक में प्लस साइन लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है, स्क्वायर खत्म हो चुका है, दूसरे में माइनस साइन लेंगे। सो अगर हम प्लस साइन लेंगे तो यू विल गेट f11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस f1 स्क्वायर, इसमें काफी चीजें कैंसिल होंगी, दोनों ही साइंस को लेके, और k sub b होगा दूसरा प्रिंसिपल कर्वेचर, it will be f1 divided by u into 1 plus f1 square whole raised power 1/2। कुछ नहीं करना, प्लस और माइनस साइन लेना। देखो जैसे कि तुम सोच सकते हो, अगर माइनस साइन लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स वुड कैंसिल आउट, और ये और ये ऐड हो जाएगा, सो फिर 2 खत्म हो जाएगा, मतलब यही जो मैंने लिखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स therefore इसका जो रेडियस ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर्स है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, वो होगा 1 plus f1 square whole raised power 3/2 divided by f11, and rho b जो है वो है of course u into 1 plus f1 square whole raised power 1/2 divided by f1. So where these rho and rho b are the radii of, that's understood, radii of principal curvatures, या principal radii, whatever, principal curvatures. Okay, so ये हमने कर दिया, and the Gaussian curvature जो important है, also the Gaussian curvature, इसमें एक चीज अभी जोड़ूंगा, Gaussian curvature जो है k and first curvature j, Gaussian curvature the product of these roots, k is equal to k sub a, k sub b बराबर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, it would be f11 f1 divided by what is it, u into 1 plus f1 square का whole square, and j जो है that's the sum of the curvatures, इनको ऐड करेंगे k and kb को, और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ this would be u f11, although it's not that important for us, हमारा फोकस है Gaussian curvature पे, so we need not worry about this much, लेकिन पता होना चाहिए it is just the sum of the principal curvatures. Okay, फोकस है इस पे,
अब जो भी ये है, important part ये है, it is given in terms of f, and f is our profile curve, है ना? f of u is our profile curve, or in terms of its derivatives and the parameter, we get the Gaussian curvature, the principal curvatures, everything is about the, होना भी वही चाहिए क्योंकि वही कर्व के रोटेट करने से हम इसको जनरेट कर रहे हैं सरफेस को, और जिसको हम जनरेटिंग कर्व भी बोलते हैं. Okay, now the next thing is, जैसे हमारा स्फीयर है, स्फीयर पे every point is an oblique, every direction, every normal section is a principal, क्या बोलते हैं, so any great circle जो होगा, great circle means having the same radius as that of the sphere. अगर इसकी radius r है sphere की, तो इसका जो principal curvatures होंगे, तो एक होगा 1/r, दूसरा भी होगा 1/r. Obviously, क्योंकि इन्हीं sections, इसके जो normal sections हैं, वो सारे के सारे होंगे great circles, और उन्हीं में से कोई दो पकड़ लो किसी point पे, है ना? क्योंकि every जो normal section है वो principal section है, because the points are oblique. So therefore इसका जो Gaussian curvature होगा वो होगा k, that is equal to 1/r square. This is always positive. हर point पे Gaussian curvature positive. तुम्हें पता है जब physicists कहते हैं कि universe is infinite, उनका basis actually curvature ही है. मतलब वो किस basis पे कह सकते हैं, वो थोड़ी ना पूरी universe घूम के आए हैं, ठीक है ना? वो तो अभी तो सोलर सिस्टम, अभी तो मार्स तक पहुंचना इतना मुश्किल हो रहा है, यूनिवर्स तो बहुत बड़ी. तो वो किस बेसिस पे कहते हैं that universe must be infinite? It is actually about the measurement of curvature of the universe at different points by very very sensitive instruments. तो वहां पे अगर यूनिवर्स को कॉम्पैक्ट होना है, फाइनाइट होना है, तो उसका कर्वेचर पॉजिटिव होना चाहिए. जैसे प्लेन का कर्वेचर हर पॉइंट पे 0 है ना? तो इट कैन नॉट बी, obviously you can see that इसका Gaussian curvature 0 होगा. इनफैक्ट सिलेंडर का भी 0 होगा, क्योंकि इसका एक प्रिंसिपल जो सेक्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन है और उसका कर्वेचर 0 है. दूसरे का होगा कुछ, लेकिन चूंकि हमें प्रोडक्ट लेना है, सो वो Gaussian curvature 0 होगा. प्लेन का तो दोनों ही 0 है, because you can choose reparameterize it in this way, one line here, one line here, they are both 0, product is 0. So the point is that हम ये देखा गया है कि Gaussian curvature या जो curvature of the universe है वो is slightly negative. It's not positive. It is close to 0 on an average. So on that basis, जो physicists हैं या जो इस पे काम करने वाले हैं वो कहते हैं universe must be infinite. You know, it cannot be finite, because अगर उसे finite होना है तो उसे मतलब एक तरह से उसको वापस लपेट के आना है to make the curvature positive, so that ये दोनों की साइन सेम हो, दोनों का एक तरह से जो convexity और concavity है वो, it cannot be hyperbolic in the sense of जो मैंने बोला था pseudosphere, क्योंकि एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे, मतलब this also cannot be a finite thing, क्योंकि ये वापस आ ही नहीं रहा है इसको finite बनाने के लिए. Okay, oh, leaving that aside, now we come, हमने देखा ये जो sphere है हर point पे इसका जो Gaussian curvature positive है. Now we want to show that there exists a surface जिसका हर point पे surface of revolution तरफ से जिसका हर point पे जो curvature है वो negative है. तो मैं लिख देता हूँ surface of revolution having constant, यहाँ पर भी constant है ना, हर जगह पे same है, हर जगह पे constant है और positive. हम दिखाएंगे ये भी possible है कि एक surface ऐसी exist करती है, एक ऐसी surface of revolution जिसका constant negative curvature है, negative Gaussian curvature.
अब उसके लिए देखो ये जो मैं बीच में लिखूंगा ये मैं ट्रैक्ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा। जो मैंने कहा था लास्ट टाइम कि ट्रैक्ट्रिक्स एक कर्व है जो मैंने बोला था तो मैं करने के लिए, लेकिन यहाँ चूंकि मुझे जरूरत है तो आई डोंट हैव अ चॉइस बट मैं उसको डिराइव करूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बोला था आइडिया ये है, पहले मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, चूंकि जब भी किसी की इक्वेशन लिखनी होगी किसी भी कर्व की, आइडिया तो मैंने बताया ही था कि ऐसे तुम्हारा एक रॉड है और तुम इसको घसीट रहे हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये जो यहाँ पॉइंट है इट वुड प्लेस कर्व लाइक दिस। लेकिन इसको मैथमेटिकली प्रिसाइज बनाने के लिए कौन सी प्लेन कर्व होगी, व्हाट आई डू, आई स्टार्ट एट द ओरिजिन में, तुम ओरिजिन पे खड़े हो और यहाँ पे इस जो रॉड की मैंने कहा जो लेंथ है वो मान लो a है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a0 हो, यानी ये जो लेंथ है ये a है। एंड अब अगर मैं इस पॉइंट को घसीटता जाऊंगा, राइट, लेट मी राइट इट लाइक दिस, ओह शिट, इसमें ड्रॉ करना थोड़ा tough। तो मैंने जैसे बनाई थी वो ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा बड़ा बनाना था मुझे इसको। थोड़ा फिर से रब करते हैं ऐसी कर्व, लेट मी राइट डाउन द स्टेज, तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, लिख देते हैं चलो पहले प्रॉपर्ली, फिर दूसरे पेज पे। ओके, ऐसा है कि लेट एस बी अ chord of length a situated as straight as a line segment whose points are P and T, let me call it, whose endpoints are P and T, and let it be aligned along x-axis. Let S be aligned, इसको हम रखेंगे x-axis पे, x-axis with T at the origin, and therefore P के जो coordinates होंगे जो मैंने लिखा था सीधे ही, it would be a0 and let T be dragged along y-axis. Drag मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है, की जी है, नहीं डबल जी है, डबल जी along y-axis। तो अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा along y-axis, then हम दिखाएंगे equation of this curve is y is equal to a ln of a plus minus root of a square minus x square divided by x minus plus root of a square minus x square। ये प्लस माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट्स हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को हम रख रहे हैं कि स्क्वायर रूट प्लस साइन का भी हो सकता है माइनस साइन का भी। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर अगर प्लस साइन होगी तो यहाँ माइनस होगी, यहाँ अगर माइनस होगी तो यहाँ प्लस होगी। तो अब हम दिखाएंगे एक्चुअली में इसकी इक्वेशन यही होगी। तो प्रूफ भी इसका उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है। सो ये मान लो अब जो मैंने जिस तरह से मैंने सेटअप किया, तो यहाँ पे पॉइंट P है मान लो कहीं पे, लेट मी कॉल दिस पॉइंट P जो ना शुरुआत में है, मैंने कहा था P इसको T यहाँ पे है, ये लेंथ A है। तो अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ along y एक्सिस। तो ये जो कर्व जो है नेचुरली मतलब इस तरह से तो बनेगी ही, लेकिन फर्दर मोर अब जब ये पॉइंट P यहाँ पहुंच गया तो ये जो लेंथ है ना इधर, ये जो PT है, T यहाँ पहुंच जाएगा। व्हेन आई मूव दिस, मतलब ये मान लो कोई भी पॉइंट है ऑन दिस कर्व, देन आई मस्ट हैव दिस रिलेशन that this PT must be tangent to this curve। ये थोड़ा यहाँ पर मैं ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, let me try again। इस पे मुझे तो कंट्रोल नहीं है, तो let's do it।
ओके, यहाँ पे पहले P यहाँ पे था, अभी इस तरह से रॉड थी और T यहाँ पे था, अब ना यहाँ पे लंबा हो गया तो फिर से रब करना पड़ा। इसको थोड़ा यहाँ से, मतलब इसको मैं एक्सेंचुएट कर रहा हूँ ताकि फिगर ठीक से बने, और तो ये क्लियर नहीं है क्योंकि टैन ये इस तरह से जा रही है। और ये ऐसे, हाँ इस तरह से। अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा यहाँ पे P, जिसके कोऑर्डिनेट सपोज है x y, एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, तो ये जो ये ड्रैग किया है मैंने रॉड, ये कुछ यहाँ पहुंच गई होगी अलोंग बाय एक्सिस, जब मैं ले जा रहा हूँ इस T को, जो ओरिजिन पे था अभी यहाँ पे होगा। और इक्वेशन, ये जो ये टेंजेंट है, ये जो ये लाइन है ना यहाँ पे, इट मस्ट बी टेंजेंट टू दिस कर्व। यानी अगर y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x जो है, ये कर्व है जो ये बन रही है, तो उसका टेंजेंट जो है वो होना चाहिए दिस PT। अब इसको मैं इवेलुएट कर सकता हूँ थोड़ा सा, वो कैसे, देखो, हाउ शुड आई डू इट, लेट्स डू इट। तो ये है a, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे xy है, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी वो x होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बना सकते हैं। और ये चूंकि ये तो लेंथ a है ही, क्योंकि इसकी लेंथ तो फिक्स्ड है। अब ये थोड़ा यहाँ से बड़े से छोटा हो गया क्योंकि मैंने ये फिगर ठीक से नहीं बनाई, बट इमेजिन ये जो ये है हमारी रॉड जो यहाँ से हमने शुरू की, जिसको हमने ड्रैग किया था। So then this side must be root of a square minus x square by Pythagoras theorem. अब अगर मैं देखूं स्लोप ऑफ दिस कर्व, पहले तो ये है कि वो नेगेटिव होगा, है ना, बिकॉज इट इज ऑब्ट्यूज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो dy by dx जो होता है वो होता है माइनस y by x, यानी राइज बाय रन जो ना टेंजेंट होता है। so, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो नेगेटिव है, because it's an obtuse thing, तो मुझे नेगेटिव स्क्वायर रूट लेना है। I would have to take root of a square minus x square divided by x। तो इससे मैं ये कर्व डिराइव कर सकता हूँ कि इसकी, क्योंकि ये हमेशा इसको टेंजेंट होगा, जब मैं इसको ड्रैग करता रहूंगा, तो आई मस्ट हैव फॉर दैट कर्व dy by dx is equal to this thing। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, we just integrate this and find y कैसी फंक्शन होगी, what should be, हम दिखाएंगे y इसके बराबर होनी चाहिए। ओके, सो dy by dx इसके बराबर है, so let's move ahead। so अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, it would be dy is equal to minus root of a square minus x square divided by x dx। so it means integrate करके means that y then must be equal to integral of, या antiderivative जो भी तुम कहो, a square minus x square divided by x dx। अब इसमें you just substitute it, और सब्स्टिट्यूट के बजाय मैं अगर ऐसे ही लिखूं y मिलेगा फिर मुझे, I think you might have to substitute hyperbolic function कोई हमें substitute करनी पड़ेगी, I think perhaps a sec theta। you just substitute a equal to sec theta, because नहीं, x equal to a sec theta। तो ये सब्स्टिट्यूशन के बाद जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो मैं तुम पे छोड़ सकता हूँ, you will get minus a times ln of a minus root of a square minus x square divided by x plus root of a square minus x square plus integration constant। so this is what you will get। सब्स्टिट्यूशन करो, या फिर दूसरा तरीका, अगर तुम्हें शक हो तो इसको वापस डिफरेंशिएट करो, you will get this जो यहाँ बैठा है। एनीवे तुम इस सब्स्टिट्यूशन से आई थिंक ये होना चाहिए, बट तुमने बहुत सारे इंटीग्रल्स किए होंगे अब तक, ये तो तुम कर ही सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू गेट, यानी पहला तुम्हें मिलेगा y इज इक्वल टू, मैं फिर से लिखता हूँ, माइनस a ln ऑफ a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c, where c is the integration constant, जो कुछ भी हो सकता है,
लेकिन इस -1 को मैं पावर में ला सकता हूँ बिकॉज यूजिंग द लॉन एंड इट वुड बी a ln of this raised power -1 which would be the reciprocal and x divided by root of a square minus x square plus root of a square minus x square plus c. और अगर तुम इसको थोड़ा रैशनलाइज करो यानी तुम ऐसे लिख सकते हो a ln of x into a minus root of a square minus x square और नीचे चूंकि मैंने a minus b से मल्टीप्लाई किया सो नीचे भी करूंगा a minus root of a square minus x square plus of course as it is root of a square minus x square plus c. इसको अगर हम ऐसे लिखें फिर a plus b into a minus b is a square minus x square and you can easily see that जो नीचे हमें मिलेगा it would be just चलो लिख ही देते हैं it is a square minus x square and that can be written as x square. So it is x square into x into a minus root of a square minus x square will be plus root of a square minus x square plus c. So ये स्क्वायर और एक खत्म हो जाएगा यानी उसका एक्चुअली रेसिप्रोकल होगा ln of to be a minus root of a square minus x square divided by x plus root of e to the so we can on catch it that money कर पान एक फोन है तो फिर आवाज जरा बंद करो प्लीज. ओके तो हमें मिला y ये है लेकिन अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बजाय नेगेटिव लें सो हमें दूसरा मिलेगा यानी यू विल गेट अगर मैं इस यहाँ पर जो मैंने ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया यानी अगर मैं यहाँ माइनस माइनस कर दूं टेकिंग नेगेटिव स्क्वायर रूट्स इन लेट मी कॉल इट 1 तो हमें मिलेगा एक्चुअली y is equal to minus a ln of a minus root of a square minus x square divided by x minus root of a square minus x square plus c. और फिर क्या करना है फिर से वही प्रोसेस जो हमने यहाँ किया था तो माइनस यहाँ आएगा सो यू विल गेट ln of a plus ठीक है a plus root of whatever a square minus x square divided by x. ठीक है लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस. ओके तो ये इस तरह से होगा राइट. तो जो हमें चाहिए था वो हमें वही प्रूव मतलब यहाँ जो हम चाहते थे ना y की जो इक्वेशन होगी स्ट्रैक्ट्रिक्स की वो या तो ये होगी या ये फिर होगी. लेकिन अब c का क्या करें. अब c के लिए बड़ा सिंपल है. वी नो जो हमारा कंस्ट्रक्शन है when x is equal to a y is equal to 0. So when x is equal to a y is equal to 0 उससे हमें मिलेगा ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है अगर मैं x को a पुट करूं और y को 0 पुट करूं राइट तो a को x पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा है ना. a को x पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा राइट. a को x पुट करेंगे तो ये बचेगा ये भी 0 होगा तो you will get c is equal to 0. So when a is equal to so therefore c is equal to 0. Hence जो हमें चाहिए था ये जो ट्रैक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो होगी y is equal to a ln of a plus minus root of a square minus x square divided by x minus plus root of a square minus x square. तो ये हमने यहाँ पे कर दिया. नाउ इसकी एक पैरामीट्रिक तुम चाहे तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन भी हो सकती है वो है x at t is equal to a sec t. इसीलिए मैंने कहा था वो उस सब्स्टिट्यूशन से हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से और y बराबर होगा y at t is equal to a into t minus tan hyperbolic of t. ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन. अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि देयर एग्जिस्ट सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जिसका जो क्या बोलते हैं
curvature हर जगह negative constant. Now, so the Gaussian curvature, अब मैं उसका proof कर रहा हूँ, ठीक है ना, existence of that, ठीक है ना. So now the Gaussian curvature, let the Gaussian curvature of a surface of revolution that is R is equal to R at UV, उसको मैं पता है वो क्या है, it is U cos V, U sin V, and F of U be negative. ऐसे लिखते हैं, be a constant, be constant negative at every point. Constant negative at every point. That is k equal to, और हमने वो इवैल्यूएट किया है कि Gaussian curvature इसके बराबर होता है for a surface of revolution, वो हमने अभी किया था, O square. मान लो ये है नेगेटिव, तो let this be equal to -1 by c square. c, अब 1 by c मैंने इसलिए लिखा, मतलब c square is always of course positive, तो minus c square is always negative. अब मैंने इसको reciprocal में लिया just to make calculation so little easier, otherwise I would have written c square. उससे भी आ जाएगा थोड़ा सा, हर जगह 1 by c आ जाएगा उसको करते करते, और अगर ये इसके बराबर है it would imply, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, u को मैं यहाँ ले जाऊंगा because f is a function of u. So then twice f1 f11 can be written as divided by 1 plus f1 square. You just have to remember, do you have to remember? इसको मैं लिख सकता हूँ twice u by c square. अब याद हमें ये रखना है, f1 था मेरा df by du, और f11 का मेरा मतलब था d square f by du square. Basically हमें दिखाना है there exists some curve which would generate this surface of revolution, और हम दिखाएंगे जब ये इस इक्वेशन को satisfy करेगी, f must be the tractrix, यानी tractrix को अगर हम रोटेट करेंगे तो we will get this, जिसको हम pseudo square कहते हैं. तो now what we do, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें both sides को with respect to u, integrating both sides, what we see, ये जो यहाँ पे है, it is basically, अगर मैं denominator को differentiate करूं, I will get the numerator, right? ठीक है ना, यानी अगर मैं इस तरह से लूं, 1 by 1 plus f1 square को अगर मैं differentiate करूं with respect to u, वो क्या होगा, that would be -1 divided by 1 plus f1 square whole raised power square multiplied by internal differentiation, होगा twice f1 into f11. Why? Because f1 का डेरिवेटिव f11 है, तो इसका मतलब अगर ये इसका डेरिवेटिव है, उसका मतलब हुआ इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस f11 जो भी है डिवाइड बाय 1 plus f1 square का होल स्क्वायर. It should be, and it implies that -1 by 1 plus f1 square should be equal to integral of -2u divided by c square d. और जो कि होगा obviously, I can write it as minus u square by c square plus some constant. It's an arbitrary constant. So जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 by साइंस को हटा देते हैं, क्योंकि ये arbitrary है, तो यहाँ हम साइन को एडजस्ट कर सकते हैं. So it would be equal to u square by c square plus some c minus some c plus some c, where c is an arbitrary constant. c कोई भी constant हो सकता है. c is an arbitrary constant, and I choose it to be 0. I can, choosing c to be 0, क्योंकि ये कुछ भी constant हो सकता है, I will get 1 by 1 plus f1 square is equal to c square by u square.
ए था नहीं, u स्क्वायर बाई c स्क्वायर। चलो ओके, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं f1 और q1 को थोड़ा एडजस्ट करके इसको यहाँ लाया, फिर सिंप्लीफाई किया, मैं सीधे लिखूंगा इट वुड बी f1 स्क्वायर देन मस्ट बी इक्वल टू c स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस 1। यानी f1 जो है, f1 है बेसिकली t of f divided by du, which is equal to root of c square by u square minus 1। लेकिन बेसिकली ये f जो मेरा है वो होता था मेरा z कोऑर्डिनेट इन द प्रोफाइल कर्व। इन द प्रोफाइल कर्व पे है ना z पे आता है ना ये f of u, just the z coordinate। यानी I could have dz by du just to, इसको हम अगर करना चाहें होगा बराबर c स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस 1। यानी जो मेरी प्रोफाइल कर्व है देन दैट शुड बी दिस टाइप, z इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट ऑफ c स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस 1 du। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है और हम दिखाएंगे we will get the what was the curve, मैं जरा यहाँ फिर से आना चाहूँगा, c स्क्वायर बाई u स्क्वायर। सो इट इज, मुझे इसको इवैल्यूएट करना है c स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस 1 du। सो अगर हम पुट करेंगे u को साइन थीटा, नहीं c साइन थीटा कर देते हैं, c साइन थीटा, सो दैट du इज इक्वल टू c cos थीटा d थीटा। मेरा जो z बन जाएगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ, it would be c square minus u square divided by u square du, जिसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, it would be root of c square minus c square sin square theta divided by, मैं क्या कर रहा हूँ, दो बार मैंने लगा दिया, ओके। और नीचे आएगा c square sin square theta, let's write it, और du आएगा c cos theta d theta। So वो बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ, दिस इज c स्क्वायर इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर, c आ जाएगा, c खत्म हो जाएगा, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर, you should get what I think cos theta by sin theta। तो यहाँ पे आएगा c cos theta d theta, वो बन जाएगा cos c बाहर इंटीग्रल, what will be this? This would be actually cos square theta by sin theta d theta, or that would be integral of, do I have secant theta minus sin theta भी लिख सकते हैं। तो secant theta minus sin theta बराबर होता है cos square theta by sin, ये तुम चेक कर सकते हो easy, because this is basically 1 minus sin theta minus sin theta, that's 1 minus sin square theta by sin theta, that's equal to cos square theta by sin theta। क्योंकि इसका इंटीग्रल हमें पता है, इसका इंटीग्रल होता है जो तुमने किया होगा लोअर क्लास में, इट इज log of cosecant theta minus cotangent theta plus cos theta। अब इसको वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब थीटा को यहाँ पे u में लाएंगे, सो दैट वुड बी, मैं सीधे लिखता हूँ log of c by u minus root of c square minus u square divided by u plus root of c square minus u square। मतलब ये तुम चेक कर सकते हो, मतलब दिस इज द इक्वेशन। अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, u तुम लाओ, अब इसको u को ऐसे अगर लिखेंगे, चलो लिख देते हैं, इसमें क्या है, log of c minus root of c square minus u square divided by u, वहां पर a है और x है, राइट, वो बस उतना ही फर्क है, बाकी तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स। दिस इज द, now this curve is the tractrix, hence the required
surface is the surface generated by the ट्रैक्ट्रिक्स। वो इसको मतलब फिर हम रिवर्स कर सकते हैं, ट्रैक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं रिवर्स किया तो इसका गाउसियन कर्वेचर जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का होगा इसकी वो कांस्टेंट नेगेटिव होगा हमेशा, और इसको हम स्यूडोस्फीयर कहते हैं जो मैंने कहा था। तो रिमार्क में लिखते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन obtained from tractrix is called pseudosphere. Okay, let's leave it today. आज के लिए इतना ही. Let me stop the share. जो 20 students आए हैं आज.